Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you will be fine at your homes. Today we are going to finish our chapter number 1. We have two questions here. One is impact of biological studies on human welfare and other is chemical and organic evolution of earth. Okay? After that we will do our exercise from book which is in page 22. One is fill in the blanks and other is encircle the appropriate answer or MCQs. Now start your copy work and I will explain it also. Our question is, what is the impact of biological studies on human welfare? Our main heading is impact of biological studies on human welfare. Right? Biology had made a great impact on human welfare by improving quality of life. Full stop. Some of its impacts are as follows. Our side heading is production of food. Point number 1. Production of various kind of food, especially crops like wheat, maize, and rice is very active field of biology. Point number 2. Men grew different types of vegetables and fruits and improved their varieties due to biological researches. Point number 3. Men also improved the quality and quantity of food products by developing dairy farming, poultry farming, cattle farming, etc. Our side heading is improvement of health. Point number 1. In the field of health, the discovery and development of new medicines, vaccines, and diagnostic medical equipments have been very helpful to mankind. Point number 2. The discovery and development of antibiotic by biologists has played a vital role in improving our health. Our side heading is improvement of environment. It is through biological research that we are finding out ways and means to overcome and at last eliminate the pollutants for providing and maintaining healthy environment. Now our side heading is genetic engineering. इसमें लिखिएगा, it is a technique in which alteration of gene, DNA of an organism is carried out to seek benefit for mankind. Number 1. With the help of genetic engineering, human insulin is produced on commercial basis. Point number 2. Many drugs are produced with the help of genetic engineering. Point number 3. Many hereditary diseases can now be diagnosed. Point number 4. Genetic engineering is also used in cloning and tissue culture. Now I am going to explain this question. This question is about impact of biological studies on human welfare, यानी बायोलॉजिकल स्टडीज़ इंसानी बहबूद यानी इंसान के लिए किस तरह फ़ायदेमंद है। इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ फूड यानी ग़िज़ा की तैयारी, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ फूड स्पेशली क्रॉप्स लाइक वीट, मेज, राइस इज़ वेरी एक्टिव फील्ड ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजिकल स्टडी के ज़रिए हमारे पास क्रॉप्स जो हैं बहुत अच्छी
बनती हैं, यानी हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फर्टिलाइज़र्स जो हैं बायोलॉजिकल स्टडीज़ के ज़रिए बनाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे क्रॉप्स जो हैं बहुत अच्छी बनती हैं। ठीक है, इसी तरह से जो men grew different types of vegetables and fruits and improved their varieties due to biological researches. Biological researches के ज़रिए इंसान ने जो है कुछ ऐसी टेक्निक्स हासिल कर ली हैं जिनके ज़रिए फ्रूट्स और उनकी वैरायटीज़ और वेजिटेबल्स और उनकी वैरायटीज़ चेंज हो गई हैं और अच्छी वैरायटीज़ में हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलती हैं। इसके अलावा हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारे पास ग़िज़ा है या हमारे पास पोल्ट्री है या हमारे पास कैटल है, वो उसकी क्वांटिटी और उसकी क्वालिटी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि हमारी आबादी बढ़ गई है। तो उसी तरह से हमें गोश्त की ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है। तो हम बायोलॉजिकल स्टडीज़ के ज़रिए ऐसी टेक्निक हमने हासिल कर ली है कि हम इन चीज़ों की प्रोडक्ट जो है ज़्यादा मकदार में हासिल कर लेते हैं। तो दूसरा हमारे पास पॉइंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, यानी ये बायोलॉजी के ज़रिए, बायोलॉजी स्टडी के ज़रिए हमें जो है मेडिसिन की फील्ड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। वैक्सीन्स तैयार हुई हैं और जो है इसी तरह से मेडिसिन्स तैयार हुई हैं और मेडिकल इक्विपमेंट्स भी हमारे पास बने हैं जिसके ज़रिए ऑपरेशंस होते हैं और हमारी हेल्थ जो है बेहतर हुई है। और सबसे ज़्यादा हमारे पास हम देखते हैं एंटीबायोटिक्स, जो कि हमारी आम दवाइयों से हम बीमारी हमारी दुरुस्त नहीं होती तो वो एंटीबायोटिक्स के ज़रिए वो ख़त्म हो जाती है। ये जो है हमारा डिस्कवरी जो है ये बहुत ही अच्छी डिस्कवरी है एंटीबायोटिक की। और इसी तरह से हमारे पास दूसरा पॉइंट है इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट का, यानी बायोलॉजिकल रिसर्चेस के ज़रिए हम तमाम पॉल्यूटेंट्स को ख़त्म कर सकते हैं और हमारी एनवायरनमेंट जो है हेल्दी एनवायरनमेंट हो जाती है। अब हमारा अगला पॉइंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब सवाल पैदा होता है व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग वो टेक्निक है जिसमें हम जो है जीन या डीएनए में चेंजेस ले आते हैं, ठीक है, ताकि बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड के लिए। अब व्हाट इज़ जीन? जीन वो साइट्स होती हैं जहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं एक्चुअली। तो ये क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन होती हैं उसके अंदर उनके कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं, तो उसको आप जो है चेंज कर सकते हैं बायोलॉजिकल स्टडीज़ के ज़रिए वो टेक्निक अपना के, तो जो है हमें इस तरह से फ़ायदा हासिल होता है। अच्छा, इसका पॉइंट नंबर 1 है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग ह्यूमन इंसुलिन इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन कमर्शियल बेसिस। हमने ह्यूमन इंसुलिन जो शुगर पेशेंट के लिए मेडिसिन है वो हमने हासिल कर ली। मैनी ड्रग्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बहुत सारी दवाइयाँ हासिल की हैं हमने। मैनी हेरिडिटी डिजीज़ कैन बी नाउ बी डायग्नोस्ड, यानी हेरिडिटी डिजीज़ कौन सी होती है? वो डिजीज़ जो हम अपने पेरेंट्स के ज़रिए हमारे अंदर खुद ब खुद आ जाती हैं, तो वो भी हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए पता चल जाती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ ऑल्सो यूज इन क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर। क्लोनिंग का क्या चीज़ होती है? एक ही ऑर्गेनिज्म का जो है डुप्लीकेट पैदा करना, टिश्यू, एक टिश्यू से दूसरा टिश्यू लैब में बनाना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में कर सकते हैं क्योंकि ये जो है डायरेक्ट जीन और डीएनए से ताल्लुक़ रखता है, तो हम जो है बड़ी आसानी से क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लास्ट क्वेश्चन विच इज़ डिस्क्राइब द फॉलोइंग। नंबर 1, केमिकल एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। नंबर 2, द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। नंबर 3, formation of amino acid and protein. Number 4, the first life. एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर हम जो हैं यूनिवर्स और अपने सोलर सिस्टम का एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं कि वो किस तरह से बना, ठीक है। पहले हमारे पास एटमॉस्फेयर कैसा था, हमारे यूनिवर्स का टेम्परेचर कैसा था, और इसके अलावा हमारे पास फर्स्ट जो है बिल्डिंग मटेरियल ऑफ लाइफ जो कि प्रोटीन होता है वो किस तरह से बना, और जो हमारी फर्स्ट लिविंग लाइफ थी वो किस तरह की थी, उसका शेप कैसा था। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट आवर कॉपी वर्क। आवर फर्स्ट हेडिंग इज विच इज मेन हेडिंग केमिकल एंड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। पॉइंट नंबर 1, in the beginning
the universe was very hot point. Number 2, about 15 billion years ago, there was a Big Bang. Point number 3, the universe started expanding and the temperature dropped drastically. Number 4, about 4.6 billion years ago, our Earth and other planets appeared as a part of our solar system. Now, our main heading is the primitive atmosphere. Point number 1, the primitive atmosphere of Earth was rich in hydrogen. Point number 2, soon gases from very hot and liquid core of Earth added more elements to this atmosphere. Point number 3, at this stage, Earth atmosphere was consisted of carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen, nitrogen, and water vapors. Point number 4, with the passage of time, atmospheric temperature gradually dropped, allowing condensation and heavy rains, which caused formation of ocean. Now, our main heading is formation of amino acid and protein. Point number 1, thunder and lightning spark together with ultraviolet radiation led to the formation of simple organic molecules. Point number 2, these molecules come down with air and mixed with water and soil. Point number 3, these molecules interact in this environment and produced amino acid and protein, which are building blocks of life. Now, our main heading is first life. Point number 1, perhaps the first life was in the form of a sphere of naked protein or RNA. Point number 2, at some stage a membrane was formed around the sphere, giving rise to the first cell. Point number 3, this first life respired anaerobically and reproduced asexually. Point number 4, the first living organism may have been like viruses. Now, I am going to explain this question. The first part is about chemical and organic evolution of Earth, यानी हमारे पास जो ये Earth है वो किस तरह से ग्रेजुअली चेंज हुई या इस यूनिवर्स और सोलर सिस्टम का हिस्सा बनी. इन द बिगनिंग द यूनिवर्स वॉज वेरी हॉट पॉइंट, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत हाई था. अबाउट 15 बिलियन ईयर्स अगो देर वॉज अ बिग बैंग, और बहुत बड़ा कोई धमाका हुआ होगा, या तो जो है दो बड़े सितारे आपस में टकरा गए. ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि यूनिवर्स स्टार्ट एक्सपेंडिंग. ये जो है टुकड़े जो हैं मुख्तलिफ जगहों पे फैल गए और टेम्परेचर जो है ड्रास्टिकली कम होना शुरू हुआ. ठीक है, देन आफ्टर 4.6 बिलियन ईयर्स अगो आवर अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स अपीयर्ड एज अ पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. यानी ये जो बड़े बड़े अजसाम थे वो टूटे और मुख्तलिफ किस्म के प्लैनेट्स बने, जिसमें हमारा अर्थ भी शामिल था. इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, यानी हमारा जो अर्थ का था तो एटमॉस्फेयर को कैसा था. द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वॉज वेरी रिच इन हाइड्रोजन. ठीक है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन थी बहुत ज़्यादा. सून गैसेस फ्रॉम वेरी हॉट एंड लिक्विड कोर ऑफ अर्थ एडेड मोर एलिमेंट्स टू दिस एटमॉस्फेयर. इसके बाद जो है कुछ अरसे के बाद जो है हमारे पास और एलिमेंट्स इस एटमॉस्फेयर में ऐड हुए. एट दिस स्टेज अर्थ एटमॉस्फेयर वॉज कंसिस्टेड ऑफ carbon monoxide, carbon dioxide, hydrogen, nitrogen and water vapors. ठीक है, with the passage of time atmospheric temperature gradually dropped. ठीक है, और
थोड़े अरसे के बाद हमारे पास टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। अच्छा, अब ये होता है कि जब बहुत गर्मी के बाद टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो वाटर वेपर्स बनते हैं, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। और इस वाटर वेपर्स की वजह से बहुत तेज़ बारिशें हुई और हमारे पास ओशंस हमारे वजूद में आए, ठीक है। अब क्या है, हमारा थर्ड पार्ट शुरू होता है क्वेश्चन का, फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन, जो कि हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक होता है लाइफ का, यानी लाइफ की स्टार्टिंग प्रोटीन से होती है। तो ये अर्थ पे किस तरह से पैदा हुए? थंडर एंड लाइटनिंग स्पार्क टुगेदर विद अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जब बारिशें हुई, बादल आपस में टकराए तो क्या हुआ? ठंडर बने और लाइटनिंग हुई, क्योंकि जो है ना हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो लाइटनिंग होती है, ठीक है। जब ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ मिली तो क्या हुआ? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। अच्छा, these molecules come down with air and mix with water and soil। ये जो जब मॉलिक्यूल्स हमारे एटमॉस्फेयर में आए तो एयर के साथ मिलकर पानी और मिट्टी के साथ मिले और फिर ये जो है हमारे इन्वायरमेंट में मिले और उन्होंने क्या बनाया? अमाइनो एसिड और प्रोटीन, विच इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ओके, अब हमारा फोर्थ पार्ट शुरू होता है कि फर्स्ट लाइफ, हमारा बिल्डिंग मटेरियल या बिल्डिंग ब्लॉक जो है बन गया। तो जो हमारी फर्स्ट लाइफ थी, यानी फर्स्ट मॉलिक्यूल या फर्स्ट सेल जो बना था वो किस शेप का था? परहैप्स द फर्स्ट लाइफ वॉज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर नेकेड प्रोटीन और आरएनए। यानी क्या था कि छोटा सा गोल स्फीयर होगा जो कि प्रोटीन या आरएनए का बना हुआ होगा, और इस स्टेज पर थोड़े अरसे के बाद इस आरएनए पे एक मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई और एक पहला सेल बना, ठीक है। अब जब ये सेल बना तो वो कैसा था? कैसे सांस लेता था, कैसे रिस्पायर करता था, कैसे रिप्रोड्यूस हुआ? तो इट रिस्पायर एनएरोबिकली एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, यानी विदाउट ऑक्सीजन और in the absence of oxygen it respires and it reproduce asexually। यानी मेल फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ओनली डिवीजन होती होगी और ये सेल डिवाइड होता होगा और इस तरह से ये रिप्रोड्यूस होता था। द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में हैव बीन लाइक वायरसेस, यानी इसकी जो शक्ल है या अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें कि ये कैसा होता होगा तो ये बिल्कुल वायरसेस की तरह से होगा, जैसे कि वायरस भी हमारे पास प्रोटीन कोट से बना हुआ होता है और ये एनारोबिकली रिस्पायर करता है और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ओके, वी हैव टू बुक एक्सरसाइजेस विच इज़ प्रेजेंट ऑन पेज नंबर 22। आवर फर्स्ट exercise is fill in the blanks which appropriate terms. Number 1, Linnaeus developed method of dash for organism. Answer is classification. Number 2, dash was considered as one of the founder of medicine. Answer is Abu Ali Sina. Fill in the blanks. Third one is biology also provides information about relation of existing organism with dash organism extinct. Number 4, sound waves, laser technology and use of radioactive isotopes shows relationship of biology with dash. Answer is physics. Number 5, dash verify the deduction and finally the hypothesis. Answer is result. We are going to do our last question which is present in exercise on page number 22. Encircle the appropriate answer. We are given 4 options and we have to write the right one. Okay. Number 1 is biology is the study of. Answer is option A, life. Number 2, study of structure, function and composition of cell is called. Answer is
Option A, cell biology. Number 3, developmental biology deals with the answer is option D, changes occurring in zygote. Number 4, the intelligent guess of scientists in the form of statement is called option C, hypothesis. Number 5, Al-Khil, Al-Ibil, Al-Wahush were written by answer is option B, Abdul Malik Asma'i.